find the center of gravity of 100 mm by 150 mm by 30 mm of T section. So this is the problem which was asked for summer supplementary 2022 for 6 marks. So we have to just find out the center of gravity. So first of all I will just draw the T section. So this is the T section having dimension 100 mm by 150 mm by 30 mm. So this portion is called as the flange of TB. This is called as the flange and this is called as the wave. Okay, so we have to just find out the center of gravity, but before that we have to just identify whether the axis of symmetry is for x axis or y axis. That we have to identify. तो सबसे पहले कौन सा एक्सिस को सिमेट्री है, y एक्सिस पर, तो वो फाइंड आउट करना है. तो आपको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद उसका आपको हर एक सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है. y1 y2 फाइंड आउट करना पड़ेगा. यहाँ पे भी दो सेक्शन में इसको डिवाइड करेंगे. ऊपर का जो सेक्शन है फ्लेंज और नीचे का जो सेक्शन है वेव. ठीक है, तो एक को हम सेगमेंट 1 और दूसरे को सेगमेंट 2 देंगे. उसके बाद उसका y1 मतलब क्या रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेगमेंट विथ रेफरेंस एक्सिस. Center of gravity of the section or segment with the reference axis. तो आपको reference axis भी डिसाइड करना पड़ता है. तो सबसे पहले I will just write here as the section is symmetrical above y axis. So see, I will consider this is the y axis. So it is symmetrical above y axis. Therefore its CG, or you can say center of gravity, will lie on y axis. This is the flange. This section is called as the flange and this bottom portion stem is called as the wave. So I will consider, see, this is as a whole rectangle, like, okay, standard geometry, and this is also rectangle. So I will consider this is the segment 1 and this will be the second. After that I will calculate the area of flange, area of wave, and similarly we have to find out the y1 of segment 1, y2 of segment 2. Okay, so I will just write here area of wave that is a1 is equal to, पहला सेगमेंट कौन सा है, दिस वन. तो इसका सिंपल हमें एरिया कैलकुलेट करना है. ठीक है, अभी इसका जो थिकनेस है, डेप्थ है फ्लेंज का 30 mm है, तो जो वेव है उसका भी डेप्थ कितना रहेगा, अगर दिया नहीं है तो 30 mm ही रहेगा, उतना ही अज्यूम करना है.
दिस इज 30 mm. तो अभी A1 कितना आएगा, एरिया ऑफ दिस वेव कितना आएगा, देखो अभी 150, ये टोटल देखते हैं, उसमें से 30 माइनस किया, मतलब यहां तक आ गया 150 माइनस 30 120 इंटू 30, into 30 mm. Just calculate how much it is. 3600. Yes, 3600. What is the unit? mm square. एरिया है ना, mm square रहेगा. सिमिलरली अभी ये जो T सेक्शन है, ये इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. तो जो सेगमेंट 1 है उसका CG निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल CG. तो वो कैसे निकालेंगे, y एक्सिस को सिमेट्रिक है तो y1 निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो राइट डाउन y1 इज इक्वल टू, अभी इसका हाइट कितना है इस सेगमेंट का 120 है, 120 डिवाइड बाय 2 सेंटर में आ जाएगा, 120 डिवाइड बाय 60, so 60, y1 is equal to 60. So I will write here 120 divided by 2, which is equal to 60 mm. Similarly, अभी ये जो सेगमेंट 2 है उसका A1, A2 एरिया और उसका Y2 फाइंड आउट करना है. So write down area of flange, area of flange A2 is equal to, अभी फ्लेंज का एरिया कितना रहेगा, दिस इज द 100 mm एंड 30 mm. ओके, यस, 100 by 30 which is equal to 3000 mm square. Similarly, find out the y2. y2 मतलब क्या है, CG of the segment 2 with रेफरेंस एक्सिस. तो हमने यहां पे कौन सा रेफरेंस एक्सिस लिया है, दिस विल बी द रेफरेंस एक्सिस. ठीक है, डिवाइड बाय 2 किया तो इस रेफरेंस को आपका y1 मिला सेगमेंट 1 के लिए. सिमिलरली अभी सेगमेंट 2 के लिए y2 फाइंड आउट करना है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द y2. y2 मतलब क्या है, सेगमेंट 2 का CG फाइंड आउट करना है अबाउट द रेफरेंस एक्सिस. तो यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है विद रेफरेंस एक्सिस, दिस इज y2. द सिंपल आई विल राइट हियर, टोटल हाइट कितनी है 150, 150 minus depth of flange is 30 divided by 2. 135 mm. 150 minus 30 divided by 50, which is equal to 135 mm. This is the y2. After that, we know that distance between center of gravity and reference axis. तो उसका एक फॉर्मूला है, y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2. जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ a1 y1 a2 y2 इन दिस फॉर्मूला. विल गेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद रेफरेंस एक्सिस.
So what is the A1? 3600 mm into what is Y1? 60 mm plus A2 is 3000 into Y2 is 135 divided by 3600 plus 3000. This is the Y bar. Correct. 94.09. So the final answer of Y bar is 94.09 mm. Write down next problem. Find the center of gravity of a channel section 100 mm by 50 mm by 15 mm. So first of all, just I will draw here the channel section. So this is the channel section having dimension 100 by 50 by 15 mm. So 100 is the longest height. So this is the 50 mm and this is 15 mm. So see, so I will consider this is first segment, this is second, and this will be the third. Now we have to find out area and x1. Okay, similarly area A2, x2, A3,
x3, and we know that the formula x bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 divided by a1 plus a2 plus a3. We'll get the center of gravity. Just calculate it. So this is the x axis, and I will take the reference axis like this. So this is the reference axis. After that, first step, as the section is symmetrical about x axis, therefore its CG will lie on x axis. Therefore area A1 is equal to, now calculate the area of segment 1. So this is the segment 1. So this is the length 50 mm, and what is the height of this section? 15 mm. 50 by 15. Yes. 50 by 15, which is equal to 750 mm square. After that, calculate the x1. अभी देखिए आपका रेफरेंस एक्सिस कौन सा कंसीडर किया है? दिस वन, लेफ्ट साइड का. तो इस एक्सिस को आपको इंडिविजुअल सेगमेंट के सीजी फाइंड आउट करने हैं. तो उसको हम कहते हैं x1, x2 और x3 विद रेफरेंस एक्सिस. तो ये फर्स्ट जो सेगमेंट है उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो भी ये लेंथ है डिवाइड बाय 2, मतलब 50 डिवाइड बाय 2. यस. सो x1 इज इक्वल टू 50 divided by 2, which is equal to 25 mm. Similarly, A2 is equal to, this is the segment 2. इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऊपर का 15 mm, नीचे का 15 mm माइनस करेंगे 100 में से 70 mm. 70 mm into 15 mm. 70 mm into 15 mm. So I will write here 70 into 15 mm, which is equal to 1050. Yes, 1050 mm square. This is the area. After that, calculate the x2. x2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी रेफरेंस एक्सिस आपका ये है, सेगमेंट यहाँ पे है, ये विड्थ कितना है आपका? 15 डिवाइड बाय 2, मतलब यहां पे आ जाएगा इसके सेंटर में. ठीक है. सो x2 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2, 7.5 mm. सिमिलरली A3 इज इक्वल टू, A3 का एरिया भी सेम रहेगा 50 into 15. 50 into 15, which is equal to 750 mm square. And x3 is equal to, x3 कैसे फाइंड आउट करना है? रेफरेंस एक्सिस ये है, इसका लेंथ 50 mm है, 50 डिवाइड बाय 2, मतलब यहां पे सेंटर पे आ जाएगा. 50 divided by 2, which is equal to 25 mm. We know that
we know that the distance between center of gravity of section and reference axis, which is equal to x bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 divided by a1 plus a2 plus a3. Just put the values, we'll get the x bar, that is center of gravity of channel section. Tell me the x bar. 25, 70, yes, 17.19, yes, 17.79. So the answer is 17.79 mm. ये है आपका x बार. अभी इसको चैनल सेक्शन पे कहां पे लोकेट करने का, तो सी, so this is the CG and the distance of this CG, or you can say x bar is equal to 17.79 mm. तो ये है आपका CG. So write down, an I section has following dimensions in mm. Bottom flange is equal to 300 by 100 mm. Top flange wave 150 by 50 mm, and wave is equal to 300 by 50 mm. So in this problem we have to determine the position of center of gravity of the section, and this problem was asked for 6 marks in winter 2022 and summer 19. So just I will draw the I section. So this is the I section. So see, this is the top flange and this is the bottom flange. So what is the dimension for bottom flange? 300 by 100. So this length is 300 mm, and height of this bottom flange is 100 mm. Again top flange 150 by 50 mm. So this is 150 mm, and the height of this top flange is 50 mm. And what about wave? Wave having dimension 300 by 50 mm.
So this is the 300. And the width of this wave is 50 mm. Yes. So tell me, what is the axis of symmetry? Y axis. So this is the y axis. So the I section is symmetric about y axis. So write down, as the section is symmetrical above y axis, therefore its CG will lie on y axis. उसके बाद हमें बॉटम फ्लेंज, टॉप फ्लेंज और वेब, इनके एरिया निकालना है और उनका y1, y2 और y3. ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं सेगमेंट 1 कंसीडर करता हूं. उसके बाद दिस इज सेकेंड, दिस विल बी द थर्ड. Therefore, area of bottom plane A1 is equal to, अभी बॉटम प्लेन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है. तो डायमेंशन कितना है? 300 mm by 100 mm. 300 by 100. 300 mm by 100 mm, which is equal to 30,000. Yes, 30,000 mm square. सिमिलरली अभी इसका y1 भी फाइंड आउट करना है. y1 इज इक्वल टू, y1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी x एक्सिस अपना रेफरेंस एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में उसका हाइट कितना है? 100 डिवाइड बाय 2, मतलब सेंटर में एक्ट होगा चीज. $100 divided by 2, that is 50 mm. 50 mm. Similarly, area of wave A2 is equal to, सेकेंड सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है. हाइट कितना है? 300 mm और वेट कितना है इसका? 300 by 50 mm. Yes, 50 mm. तो A2 is equal to 300 by 50, which is equal to 15,000. Yes, mm square. Similarly, calculate the y2. Yes, अभी y2 कैसे फाइंड आउट करना है? ये y2 सेक्शन है आपका, इसके मिडल में आपका CG एक्ट होगा, है ना? 300 डिवाइड बाय 2 प्लस 100. रेफरेंस एक्सिस ये है आपका बॉटम साइड, तो 100 का एडिशन करना है और जो सेक्शन है 300 डिवाइड बाय 2 सेंटर में एक्ट होगा. So I will write here 100 plus 300 divided by 2, which is equal to 250. Yes, 250 mm. Similarly, area of top plane A3 is equal to 150 into 50. This is the area.
750 into 50, which is equal to, yes, 7500 mm square, and y3 is equal to, अभी y3 मतलब इस रेफरेंस एक्सिस से आपको कैलकुलेट करना है। आपका सेक्शन यहाँ पे है, इसके हाफ में आपका ऐड होगा 100 प्लस 300 प्लस 50 डिवाइड बाय 2, 100 प्लस 300 प्लस 50 डिवाइड बाय 2, इसके सेंटर में ऐड होगा। 100 प्लस 300 प्लस 50 डिवाइड बाय 2, 425, yes, 425 mm. Now after that we know that the distance between center of gravity and reference axis, that is y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 divided by a1 plus a2 plus a3. So y bar is equal to a1 is 30,000 into y1 is 50 plus a2 is 15,000 into y2 is 250 plus 7,500 into 425 divide by 30,000, 15,000 plus 7,500. 160, yes, correct, 160.71 mm. So this is the y bar. अब इसको डायग्राम पे लोकेट करना है, तो यहाँ पे देखिए आपका रेफरेंस एक्सिस बॉटम में आपने अज्यूम किया था, तो बॉटम से लेके उस रेफरेंस एक्सिस से वर्टिकल वाई डायरेक्शन में 160.71, तो ये 100 है, 100 प्लस 70 मतलब समवेयर हियर, दिस इज द CG, and what is the distance? Y bar is equal to 160.71 mm. तो यहाँ पे पूछा था डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन। सबसे पहले हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट किया और उसको यहाँ पे लोकेट किया। Next problem, find the centroid of an unequal angle section. Find the centroid of an unequal angle section 100 mm by 80 mm by 20 mm. So this is the unequal angle section having dimension 100 by 80 by 20 mm. So for that I will just draw the cross section of unequal angle. This is the unequal angle having dimension 100 mm
100 by 80 mm by 20 mm. तो यहाँ पे अनइक्वल एंगल दिया है 100 by 80 by 20 mm का. तो in this case just we have to find out the centroid of unequal angle section. सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, वही अडॉप्ट करना है और फाइंड आउट करना है. अभी जैसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करते थे कि एंगल या कौन सा भी चैनल दिया है या टी सेक्शन दिया है तो वो कौन सा एक्सिस को सिमेट्रिक है ये आइडेंटिफाई करते थे. इट इज अनसिमेट्रिकल टू एक्स एंड वाई एक्सिस. अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं. तो यहाँ पे मैं सेगमेंट फिर से कंसिडर करता हूँ. सो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट एंड दिस इज द सेकेंड सेगमेंट. So after that I will just write here as the section is not symmetrical above any axis, therefore we have to find out the value of x bar and y bar for the angle section. तो यहाँ पे जैसे कि हमने कहा है कि ये जो अनइक्वल एंगल सेक्शन दिया है ये तो x एक्सिस को सिमेट्रिक है ना ही y एक्सिस को सिमेट्रिक है. तो इसकी वजह से हमें x बार और y बार दोनों ही निकालना. ठीक है. तो जस्ट कैलकुलेट एरिया दैट इज A1 segment 1. So we have considered this as a segment 1 having dimension 80 by 20. बट ये पोर्शन जो है ये विड्थ है माइनस करना पड़ेगा 80 में से क्योंकि ये सेक्शन हमने ऐसा कंसिडर किया है. तो 60 by 20 60 by 20 which is equal to 1200 mm square. Similarly x1 is equal to अभी x1 कैसे फाइंड आउट करना है. x1 कौन से डायरेक्शन में जाएगा, x डायरेक्शन में जाएगा. मतलब लेफ्ट फेस से लेके आपको x1 फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो वो कितना है देखिए, इस पेज को हमने रेफरेंस लिया x1 के लिए. x1 के लिए दिस इज एज अ रेफरेंस एक्सिस. सो 20 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, 80 नहीं 20, दिस इज 20 mm. 20 प्लस अभी इसका हाफ में कितना होगा 60 डिवाइड बाय 2. 20 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 50 mm. फिर से देखिए सेगमेंट 1 हमने ऐसा कंसिडर किया है. ठीक है, इतना एरिया. अभी ये जो 80 mm है यहां तक है तो इतना माइनस करना पड़ेगा. तो ये लेंथ हमको मिलेगा 60. 80 माइनस 20 60. ठीक है. अभी इस 60 mm के हाफ में कहां पे सीजी एक्ट होगा, कहीं तो भी सीजी एक्ट होगा. कहां पे होगा, हाफ में. जितना डिस्टेंस रहेगा डिवाइड बाय 2. ठीक है. 60 डिवाइड बाय 30 होगा यहाँ पे. लेकिन रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका, लेफ्ट साइड है तो यहां से लेना है. तो इसी वजह से हमने ये 20 ऐड किया. 20 प्लस 60 डिवाइड बाय 2. सिमिलरली अभी y1 देखिए, y1 इज इक्वल टू,
अभी y1 कौन सी डायरेक्शन में लेना है? y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन मतलब कहां? आपको रेफरेंस ये लेना पड़ेगा, बॉटम साइड। तो इसका CG कहां पे एक्ट होगा? 20 डिवाइड बाय 2, इसके सेंटर में। सो y1 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2, 10 mm। सिमिलरली A2 के लिए फाइंड आउट कीजिए एरिया A2 फॉर सेगमेंट 2। सेगमेंट 2 ये है अपना 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 2000 mm स्क्वायर। सिमिलरली x2 कौन से डायरेक्शन में लेना है? x डायरेक्शन में लेना। तो रेफरेंस आपका कौन सा रहेगा? लेफ्ट फेस। और इसका विड्थ कितना है इस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में 20 डिवाइड बाय 2, सेंटर में एक्ट होगा इस सेक्शन के, वो है आपका x1। सो 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10 mm। और सिमिलरली y2 मतलब y डायरेक्शन में, रेफरेंस बॉटम साइड, हाइट कितना है? 100 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 50 mm। यहां तक समझ में आया? ठीक है। आफ्टर दैट जस्ट वी नो दैट the distance between center of gravity of the section and left face। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लेफ्ट फेस मतलब क्या फाइंड आउट करने वाले आप? एक्स बार है ना, लेफ्ट में लिया है तो ऐसा एक्सिस जा रहा है ना, तो ये एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस में, तो एक्स बार फाइंड आउट कर रहे हैं। तो राइट डाउन एक्स बार इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। A1 is 1200 into 50 plus 2000 into 10 divided by 1200 plus 2000 which is equal to 25 mm। This is the x bar। Similarly, distance between center of gravity and bottom face मतलब y bar। So write down similarly distance between center of gravity of the section and bottom face, that is y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2। which is equal to 1200 into y1 is 10 plus 2000 into y2 50 divided by 1200 plus 2000। So y bar is equal to
Yes, 35. 35 mm. How to locate the position of exact position of center of gravity? तर हे जे काही इंटरसेक्शन असेल तर तो तुमचा सीजी असेल, अनइक्वल अँगल सेक्शनचा. बट आता हे डिस्टन्स कोणतं आहे तुमचं? दिस डिस्टन्स इज एक्स बार and this distance is y bar. x bar कितना है? 25 mm and y bar is 35 mm. So this is the CG of unequal angle section. So write down, a square hole is punch out. A square hole is punch out of circular lamina, the diagonal of the square being the radius of circle as shown in figure. Find the center of gravity of the remainder if r is the radius of circle. So let's suppose this is the circle. And this is the center of the circle. This is the radius of circle. तर हा पोर्शन जो आहे ना, हा पंच आउट केलेला आहे, हा काढून घेतलेला आहे, हा पोर्शन. तर या केस मध्ये मला सांगा, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री कोणती आहे? एक्स ऍक्सिसला. ज्यावेळेस आपण एक्स ऍक्सिसला हा सर्कल फोल्ड करणार, सिमेट्रिकल डायग्राम तुम्हाला भेटेल दोन्ही साइड, बरोबर आहे. वाय ऍक्सिसला भेटेल का? नाही, कारण त्या पोर्शन जो काढलेला आहे, डायमंड पोर्शन काढलेला आहे, त्यामुळे एक्स ऍक्सिसला याची सिमेट्री बनलेली आहे, बरोबर आहे. एक्स ऍक्सिसला सिमेट्री आहे म्हणजे आपल्याला रेफरन्स काय घ्यावं लागेल? अपोजिट. तर इथे मी रेफरन्स ऍक्सिस घेतो. सो आय विल जस्ट ड्रॉ हियर रेफरन्स ऍक्सिस and this point is called as the A. Okay. After that, just write down first step as the section is symmetrical above x axis, therefore its CG will lie on x axis and let A be the point of reference. उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एरिया. एरिया और एक्स एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है तो x1 और x2 ऐसे फाइंड आउट करेंगे. सो आफ्टर दैट राइट डाउन
एरिया ऑफ मेन सर्कल दैट इज A1 इज इक्वल टू, सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या है, π/4 इंटू डी स्क्वेअर किंवा πr², बरोबर आहे, π/4 डी स्क्वेअर किंवा πr². सो A1 इज इक्वल टू πr² and x1 is equal to, अभी x1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पूरा सर्कल है, x एक्सिस में आपको x1 मिलेगा, ठीक है, ये पूरा सर्कल यहां तक, डायमीटर कितना है इसका d है ना, डायमीटर को डिवाइड किया 2 से तो आपका CG मिल जाएगा आपने, मतलब जो रेडियस है वो आपका x1 है, जो रेडियस है वो आपका x1 है. सो आई विल डायरेक्टली राइट हियर x1 इज इक्वल टू r, x1 is equal to r. Similarly, area of cutout square that is A2 is equal to, अभी ये जो स्क्वायर है इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये कितना है इसका डायगोनल r, ये भी डायगोनल कितना रहेगा r इंटू r डिवाइड बाय 2, r इंटू r डायगोनल के डिवाइड बाय 2, उसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है. ये कटआउट का जो पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, r इंटू r डिवाइड बाय 2. So I will write here r into r divided by 2 means r square by 2, or you can say 0.5 r square, 0.5 r square. Similarly, find out the x2. अभी यहाँ पे देखिए फिर से, अभी x2 फाइंड आउट करना है. अब इसका जो डायगोनल है r, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब इसके सेंटर में आ जाएगा प्लस r, ये सेंटर है, ठीक है. तो इस रेफरेंस पॉइंट पे आपको x2 फाइंड आउट करना है. तो ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज r, दिस इज r एंड दिस r डिवाइड बाय 2, मतलब इसके सेंटर में. सो आई विल राइट हियर r प्लस r डिवाइड बाय 2. तो ये कितना आएगा, इनका एडिशन करेंगे तो 3r बाय 2, 3r बाय 2. या 1.5 इंटू r, ऐसा भी लिख सकते हो, 1.5 इंटू r. सो दिस इज द x2. अभी लास्ट फॉर्मूला क्या है, जस्ट राइट डाउन. वी नो द डिस्टेंस बिटवीन CG and reference point that is x bar is equal to a1 x1. So x bar is equal to a1 x1 minus a2 x2 divided by a1 minus a2. Just put down the values. So a1 is pi r square into x1 is r minus a2 is 0.5 r square into 1.5 r divided by pi r square minus 0.5 r square.
इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई आर क्यूब माइनस 1.5 इंटू 0.5, हाउ मच इट इज 0.75 आर क्यूब डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस 0.5 आर स्क्वायर। तो यहां से मैं ये आर का जो टर्म है वो कॉमन लेता हूं, सो आर क्यूब इन ब्रैकेट पाई माइनस 0.75 और डिनोमिनेटर से भी आर स्क्वायर कॉमन लेता हूं, आर स्क्वायर पाई माइनस 0.5 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आर पाई माइनस 0.75 डिवाइड बाय पाई माइनस 0.5। तो आपका आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ आर आपका आंसर मिलेगा। कैलकुलेट कीजिए वो 0.905। So the answer is 0.905 into R. So this is the X bar.